ओम शांति। आज साकार मुरली 23 जुलाई 2021। आज के विशेष बाबा নিজের উন্নতির খেয়াল রাখতে বলছেন, নিজের চিন্তন করতে বলছেন, অন্যের চিন্তন না করে নিজের চিন্তন করি, নিজের উপরে অ্যাটেনশন দেই। কেন কি আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে অন্যকে দেখা, অন্যের চিন্তন করা, কিন্তু বাবা আমাদেরকে বিশেষ নিজের চিন্তন করার জন্য অ্যাটেনশন দেওয়ার জন্য বললেন যে আমাদের নিজের চিন্তন করলেই আমরা উন্নতি করতে পারব। তো আজকে বিশেষ বাবার এই ড্রামা কত সূক্ষ্ম, এই ড্রামার মধ্যে আমাদের কি পাঠ, আমরা প্রত্যেকে পাঠধারী, কিভাবে পাঠ করছি। তো ড্রামা বড় না পুরুষার্থ বড়? তো বাবা বলছেন পুরুষার্থ বড়। পুরুষার্থ করার পরে যদি কোনো কাজের মধ্যে সফলতা না হয় তখন বলা হয় ড্রামা। ড্রামাতে ছিল, ড্রামাকে বলে, ড্রামা কল্যাণকারী বলে নিজেকে তখন হালকা করে দেওয়ার জন্য ড্রামার জ্ঞানটা দিয়েছেন বাবা। আগেই যদি আমরা ড্রামা ভাবে নেই তখন তো পুরুষার্থ করারও কোনো দরকার নেই। তাই জন্য পুরুষার্থ বড়, ড্রামা বড় না। ড্রামা তো আমাদের মনস্থিতি জানি না পরিবর্তন হয়ে যায়, মনে কোনো আঘাত না লাগে যায়, তার জন্য বাবা বললেন লাস্ট অবস্থায় আমাদেরকে ড্রামাকে ইউজ করতে হবে। কিন্তু ড্রামাকে আগে ইউজ করার কোনো অর্থ বনে না। তো বহুত কিছু বাবা আজকে বিশেষ বলেছেন, জন্মের বলেছেন। আমরা এই তো জন্ম নিলাম, কত উঁচু থেকে নিচে নামলাম, আমাদের কিছুই মনে নাই। তো শুনি বাবার মহাবাক্য। बाबा बोलें मीठे बच्चे, तुम्हें अपना चिंतन करना है, दूसरे का नहीं, क्योंकि ड्रामा अनुसार जो करेगा वह पाएगा। ड्रामा अनुযায়ী যে করবে সেই পাবে। তো আমাদেরকে ড্রামার উপরে অটল বিশ্বাস লাগবে, আর আমাদেরকে কিভাবে করতে হবে, যে করবে সে পাবে, তো আমাদেরকে করতে হবে। प्रश्न, त्रिकालदर्शी बनने से आत्मा को कौन सी स्मृति आई है? त्रिकालदर्शी तीनों काल के আমরা জানতে পারছি, তো আমাদের কি স্মৃতি আসছে? उत्तर, आत्मा को स्मृति आई মানে স্মৃতি মানে মনে আসা। हम আসল মূল वतन के निवासी, কি মনে পড়ে গেল যে আসলে আমরা মূল वतনের বাসিন্দা। इस ड्रामा में पाठ बजाने आए, আমরা আসলে মূল वतन বাসিন্দা, এখানে কি করতে আসছি? শুধু পাঠ বাজানোর জন্য। हमने मुख्य एक्टर्स बन 84 जन्म का पाठ बजाया। मुख्य एक्टर्स, एक्टर्स तो अनेक থাকবে, लेकिन তার মধ্যেও আমি मुख्य एक्टर्स भावे पाठ बजाइलाम। अभी बाप के सम्मुख हैं, फिर साथ में घर जाएंगे। তখন বাবার সম্মুখে আর সাথেই বাবার ঘরে যাব, যখন ফিরবো তখন সাথেই বাবার সাথেই ফিরবো। पावन बनकर घर जाना है, पावन ना হইলে কিন্তু আমরা ফিরে যেতে পারবো না। फिर सुख धाम में आना है, আমরা যাব মুক্তিধাম। মুক্তিধাম, শান্তিধাম, নির্মাণ ধাম আমাদের আসল বাড়ি। यह सारा खेल भारत पर ही बना हुआ है। ভারতে স্বর্গ ছিল, ভারতবাসী স্বর্গবাসী ছিল, ভারতই স্বর্গ হবে। তো সারা খেলটাই ভারতের উপরে হয়েছে।
भारती पुण्यभूमि, भारती ভগবানের অবতরণ ভূমি, सब समय भाला है। भारत माता की जय हो। रशिया माता की जय हो तो बोला जाए ना ना, तो भारतेर कत महिमा। यह सारी स्मृति त्रिकालदर्शी बनने से आ गई। যখন আমরা ত্রিকালদর্শী হইলাম তো সব কিছু আমাদের মনে চলে আসলো, কেন আমরা বুঝতে পারলাম যে এই তিনও কালের মধ্যে সবার থেকে বিশেষ স্থান, বিশেষ পাঠ হইল ভারতের। गीत है, मरना तेरे गली में, जीना भी तेरे गली में। मरबो तो बाबार काछेई, बाँचबो तो बाबार काछेई। ओम शांति। यह गीत किसने गाया? बच्चों ने। क्या कहते हैं बच्चे? बाबा अभी तो आपके गले का हार बनना है, गलार हार। यह शरीर तो यहाँ ही छोड़ देना है, এই शरीर तो এখানেই থাকে যাবে। बच्चे जानते हैं शांति धाम व निर्माण धाम में बाप और हम बच्चे आत्माएं रहती है। अब बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, बाबा बार बार बोलें, अपने को आत्मा निश्चय करो। এই কথাটা बाबा बार बार बोलें कि নিজেকে आत्मा मने करो। तुम जानते हो हम आत्माएं बाप के साथ निर्माण धाम में रहने वाले थे, फिर यह शरीर धारण कर 84 का चक्र लगाया। बच्चे जानते हैं हम बरोबर परम धाम के निवासी हैं। अब फिर बाबा आए हैं, तुम बैठे हो देखते हो, बाबा सामने बैठे हैं। यहाँ है लौकिक शरीर के संबंध। हम असल आत्मा थी, फिर लौकिक संबंध में सुख का और दुख का जीवन बिताया। लौकिके सुख अनुभव करलाम तो दुखेও पाठ बजाइलाम। अभी तुम आत्माएं त्रिकालदर्शी बनी हो। बाप भी तीनों कालों, तीनों लोगों को जानने वाला है। तुम भी जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। पढ़ाई की याद तो रहनी चाहिए ना। अभी स्मृति आई है, बाबा ने समझाया है, तुम मूल वतन में रहने वाले हो। अभी तुम बाप दादा द्वारा त्रिकालदर्शी बनते हो। तुम जानते हो इस ड्रामा के हम मुख्य एक्टर्स हैं। मुख्य एक्टर्स। सारे ड्रामा की नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में अब है। स्मृति आई है, हम आधा कल्प सुख धाम में रहे, वहाँ रावण होता ही नहीं। हम आत्माएं पूरे 84 की चक्र लगाती, আমরাই 84 चक्रते आसी। अभी बाप सन्मुख बैठे हैं, आपकी श्रीमत पर हम आपके साथ चलेंगे। बाबा सम्मुखे आছেন तो আমরা বাবার সাথে কি বলছি যে বাবা हम आपकी श्रीमते মানে বাবার আপনার শ্রীমতো চলবো আর আপনার সাথেই আমি फिरेও যাব। जितना हो सके आपको याद करेंगे। तुम बच्चों को सारा दिन यही ख्याल रहना चाहिए। क्या चाहिए? जबकि त्रिकालदर्शी बने हो, ऊंचते ऊंचे है भगवान, उसके साथ तुम बच्चे भी ऊंचते ऊंच रहने वाले हो। अभी तुम बच्चों को घर की याद आई है। हम पवित्र बन अपने परम धाम घर जाएंगे। परम धाम बाड़ीते जाबो।
बाबा शिव की पूजा होती है तो शालिग्राम की भी पूजा होती है। शिव बाबा যখন पूजा হয় साथे साथे शालिग्रामेরও पूजा है। बाप ही आकर आत्माओं को पावन बनाते। आत्माओं को पवित्र बनाने वाला एक ही बाप है। আত্মাকে পবিত্র করার অন্য কারের মধ্যে ক্ষমতা নাই। এক বাবার কাছেই শক্তি আছে যে আত্মাকে পবিত্র বানিয়ে দেন, যেহেতু উনি হইলেন পরম পবিত্র। और कोई बना ना सके। अभी तुम ड्रामा के खेल को जान चुके हो। ये ड्रामा আমরা সব খেলতেছি, আমরা এখন জানতে পারছি। समझते हो भारत पर भी खेल बना हुआ है, भारतेर ऊपर ही खेल। तो अब तुम बच्चों को बाप सन्मुख बैठ समझाते हैं। हर एक जीव की आत्मा जानती है। ज्ञान, बाबा ज्ञान का सागर है, उसको भक्ति मार्ग में बुलाया है और प्रतिज्ञा करते आए हैं। भक्ति मार्गे बाबा के सबाई डाकलो और बाबा থেকে কি করলো, সবাই प्रतिज्ञा করলো। बाबा आप आएंगे तो जरूर हम आपकी मत पर चलेंगे। यह कोई लौकिक संबंध की बात नहीं। तुमको देही अभिमानी बन यह ख्याल करना है कि हमको यह बेहद के बाप की श्रीमत पर चलना है, उसका ही मानना है। बाबार श्रीमतेও चलबो और बाबार कोथाई मानबो। वह तो बहुत सहज समझाते हैं। तुम्हारा अब तीसरा नेत्र ज्ञान का खुल गया है। ज्ञानेर तीसरा नेत्र, দুটা নেত্র তো আছেই, দুটা চোখ তো আমাদের আছে। বুদ্ধিরূপী নেত্র ছিল, কিন্তু কি ছিল, হ্যাঁ, কোনো কিছু থাকে কিন্তু ঢাকা পড়ে যায়। ঠিক বুদ্ধিরূপী নেত্রটা আমাদের ছিল কিন্তু ঢাকা পড়ে গেছিল। কার মধ্যে? দেহর অভিমান মধ্যে। এই দেহকেই দেখতাম, এই জগতের থেকে বাইরে জগৎ দেখার কোনো ক্ষমতাই ছিল না। যেন বলে না, অন্তর জগতে দেখো। যে নিজের মধ্যে দেখলাম তো বহুত কিছু দেখতে পারলাম। तो बाबा बोलें हमको एक बेहद का बाप की श्रीमत मिली है और श्रीमते ही जानते पारलाम। यह ज्ञान तुमको यहाँ है। मूल वतन में बाप और बच्चे रहते हैं, वहाँ यह किसी को पता नहीं रहता। केउ मने करबे ना, कारो मनेई थाकबे ना। अभी तुम बच्चों को बाप अपना अंत देते हैं, वही ज्ञान का सागर है। और कोई सत्संग में ऐसे नहीं कहेंगे कि बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। অন্য কোনো সৎসঙ্গে বলবে কি? ওইখানে তো বলবে মহারাজজি আজকে আমাদের প্রবচন করতেছেন, গুরুদেবজি করতেছেন। কিন্তু এখানে স্বয়ং অলমাইটি পিতা আমাদেরকে যে শিক্ষা দিচ্ছেন, এ কিন্তু বহুত पुण्यर फल और बहुत भाग्यर व्यापार। वही ज्ञान का सागर है। बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, यह तुम जानते हो। घड़ी घड़ी तुमको कहना पड़ता है देही अभिमानी बनो। हमरा बार बार देह अभिमान आसे जाई, এই জন্য বাবাকেও বারবার বলতে হয় बच्चे देही अभिमानी बनो। आत्मा इस ड्रामा में एक्टर्स है, पार्ट बजाती है। हम आत्मा ने चोला लिया, चोला माना शरीर, ये शरीर नीलाम। वो एक्टर्स कपड़े बदलते हैं। ओरा जे लोकी के जरा एक्टर्स तारा कापड़ बदली करे। तुम आत्माई निराकारी दुनिया से यहाँ आकर यह शरीर रूपी चोला लेती हो। আমরা এখানে ওইখান থেকে এখানে আসলাম, তারপরে এই শরীর রূপী ড্রেসটা নিলাম। वो सिर्फ अपने कपड़े बदलते हैं,
हम आत्माओं को बाबा फिर से माने আগেও করেছিলেন, आकर राजयोग सिखला रहे हैं। अब तुम बच्चे समझते हो, আমরাই বুঝতে পারছি बाबा आया हुआ है। किस लिए आया है? हाँ, बाबा আসছেন, কিসের জন্য আসছেন সেও আমরা জানতে পারছি। तो जरूर हम बाप के मददगार बनेंगे, पवित्र बन और सारे भारत को पवित्र बनाएंगे। हमको श्रीमत पर ही चलना है। श्रीमत कहती है बाप को याद करना है, जो करेगा वह पाएगा। বাবাকে স্মরণ করার জন্য শ্রীমত দেওয়া হইল, তারপরে বাবা লাস্টে কি বলে দিলেন, যে করবে সে পাবে, যে করবে না সে পাবে না। सब तो नहीं आकर पुरुषार्थ करेंगे ना, जितना आकर पढ़े थे पुरुषार्थ किया वही करेंगे। जिन्होंने किया যারা করছে তারাই করবে। अभी वापस जाना है, इसीलिए पुरुषार्थ कर पवित्र जरूर बनना है। हम ऊपर मूल वतन में रहने वाले, हम आता ऊपरे छिलाम मूल वतने, आसल जगह। पहले पहले हम स्वर्ग में थे, फिर सीढ़ी नीचे उतरे। बाप समझाते हैं भारतवासियों को, যারা দেবী দেবতা ছিল তারাই ভারতবাসী ছিল, আর তাদেরকেই বাবা ওখানে এই জ্ঞান বুঝাচ্ছেন। তারাই এই জ্ঞানটাকে বোঝার জন্য চেষ্টা করবে। যারা ভারতবাসী ছিল না, তারা যারা স্বর্গবাসী ছিল না, তারা এই জ্ঞানটাকে শুনবে, কিন্তু এক কান থেকে বের করে দিবে, শোনারও মানে মনোভাব থাকবে না। তো ওই লক্ষণটা হইল যে ও আগে ওর পাঠ ছিল না, এই জন্য শুনছে না। भारत में कहते हैं कि आकर हमें पावन बनाओ। भारतवासी बोले कि आसो और আমাদেরকে पावन बनाओ। शरीर धारण कर हमको श्रेष्ठ कर्म सिखलाओ। निराकार जेहेतु তুমি আসো, শরীর ধারণ করো আর আমাদেরকে শ্রেষ্ঠ कर्म सिखाओ। शरीर का नाम भी गाया हुआ है, यह भाग्यशाली रथ है। भगवानेर भाग्यशाली रथ। बाप भी कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। आगे भी कहा था तुम बच्चों को स्मृति आई है। बरोबर 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने यही कहा था और कोई भी यह बता न सके। बाप ही कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी मैंने इस शरीर में आकर तुमको समझाया था। अब फिर तुम बच्चों को कहता हूँ आत्म अभिमानी बनो। जैसे नाटक वालों को मालूम रहता है ना, हम कौन सा वस्त्र पहनकर क्या क्या पार्ट बजाते हैं। যারা নাটক করে তাদের তো সব মনে থাকে কোন বস্ত্র পরবো, কোন ডিজাইন করব, কি করব, सब किछु मने थाके, परंतु वह तो देह अभिमान है। यह है बेहद की बातें, देही अभिमानी बनना है। एखाने तो आत्म अभिमानी होइते बोलछे। हम असल आत्मा ही है, आसले तो हमरा आत्माई। अभी तुम्हारा पाठ पूरा होगा, आमादेर एखन पाठ पूरा होबे। बाप सन्मुख बैठ सब कुछ तुमको समझाते हैं, यह भूल नहीं जाना। माया कितने विघ्न डालती है। बाबा स्मरण करा समय माया कत धर्मे विघ्न सृष्टि करे। बाप समझाते हैं बच्चे तुमको कोई भी विकर्म नहीं करना है। मनसा तूफान भल बहुत आएंगे, अपनी परीक्षा लेनी है। माया मनसाते बहुत तूफान आसबे और बाबा की बोले दिले निजेर परीक्षा निबा। हमारी कर्म इंद्रिय चलयामान तो नहीं होती, कर्म इंद्रिया तो चंचलता करे ना, चेक करते होबे। हम काम को जीत सकते हैं, तुम्हारे लिए तो बहुत सहज है।
हम आत्मा हैं, एक बाप के बच्चे हैं, बाप से ही योग लगाना है। हम आत्मा আর বাবার সন্তান, বাবার সাথেই যোগ রাখতে হবে। कर्म इंद्रियों की चलयमान होना यह भी देह अभिमान हुआ ना। तुमको कोई से भी डरना नहीं है। কারো সাথে বাবা বললেন ভয় করতে নাই, निर्भय बनना है। কোনো পরিস্থিতি আসবে निर्भय হইতে বললেন। कभी भी कहाँ जाकर साक्षी हो देखना है। हम तो आत्मा हैं, इस खेल को तुम पूरा जान गए हो। এই চক্র খেলটাকে তো আমরা ঠিকভাবে জানে নিছি। ऊंचते ऊंच बाप है, यह बुद्धि में आया है, उसको बिंदु कहा जाता है। निराकारी दुनिया में आत्माओं का झाड़ है, बीज से झाड़ निकलता है, फिर नंबरवार पत्ते आते हैं। যখন বিচি থেকে ঝাড় বের হবে, মানে আগে কি বাইরে একটা গাছ বাইর হয়, তারপরে আস্তে আস্তে করে ওখান থেকে পাতা বের হয়। यह भी ऐसे है, ऊपर से नंबरवार आत्माएं आती हैं। এই সৃষ্টি রূপী ঝাড় এরকম। आत्मा प्रवेश कैसे करती है, निकलती कैसे है, यह कोई देख न सके। अब बाप समझाते हैं तुम्हारी आत्मा पतित हो गई है, उसको पावन बनाओ। इन द्वारा बाप समझाते हैं। ब्रह्मा बाबा माध्यम निये बाबा बुझाচ্ছেন। बात तो कर्म इंद्रिय से करते हैं ना, কথা বলার জন্য তো ইন্দ্রিয়া লাগবে না, কর্ম ইন্দ্রিয়া। आत्मा बिंदु इसमें नहीं होती तो कर्म इंद्रिया कुछ कर नहीं सकती। আত্মাই যদি না থাকে তো চোখ মুখ কান হাত থাকলেও তো কিছু কাজ করবে না। আত্মা আছে বলে মুখ বলছে, কান শুনছে, চোখ দ্বারা আমরা দেখতে পাচ্ছি। দেখছে কে? আত্মা। তো আত্মাই পাঠ বাজাচ্ছে। আত্মা বের হয়ে গেলে তখন তো পাঠ শেষ। आत्मा बिंदु इसमें नहीं होती तो कर्म इंद्रिया कुछ कर नहीं सकती। इतनी छोटी बिंदु कितनी पावरफुल है, इसमें सारा नॉलेज है। बाप ज्ञान का सागर है, ज्ञान सागरेर संतान मास्टर ज्ञान सागर। जो तुमको बैठ समझाते हैं उसमें सारा ज्ञान है। सृष्टिर पूरा ज्ञान बाबार मध्य आछे, यह भी उसका पाठ भरा हुआ है। तुम्हारी आत्मा में भी 84 का पाठ है। तुम दुख सुख का पाठ बजाते हो, दुख में बहुत तकलीफ लेते हो। बाप कहते हैं मैं तो पुनः जन्म में आता नहीं हूँ। तुम 84 जन्म लेते हो, मैं तो नहीं लेता हूँ। मैं आकर तुम बच्चों को सहज युक्ति बताता हूँ कि मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। आधा कल्प तुम काम चिता पर बैठ तमो प्रधान बने हो। तमो प्रधान আমরা হয়ে গেলাম आधा कल्प द्वापर कलिजुग। आत्मा से ही बाप बातें करते हैं। आत्मा के ऑर्गन्स पहले छोटे होते फिर बड़े होते हैं। যখন ছোট থাকে বাচ্চা থাকে তখন অর্গানস ছোট থাকে, আস্তে আস্তে করে অর্গানস বড় হয়ে যায়। आत्मा तो छोटी बड़ी होती नहीं। আত্মা আত্মাই থাকে, আত্মা ছোট বড় হয় না। এনাকে বড় হইলে তার আত্মা বড় হয়ে যায়, ছোট থাকে তোর আত্মা ছোট থাকে না। গাছের বীজ যখন একটা গাছ লাগানো হয়, একটা মানে একটা বিচি লাগানো হয়, বিচিটা যখন মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয় ওখান থেকে একটা গাছ বের হয়। গাছটা বিশাল রূপ নিয়ে নেয় কিন্তু বিচিটা তো ছোটই থাকে না। ঠিক আত্মাও সেইভাবে, বীজটা হইল ছোট, ছোট বৃক্ষ হইতে পারে বড়ও হইতে পারে। জায়গা পরিস্থিতি দেখে গাছ বড় হইতে পারে ছোট হইতে পারে। ঠিক এইভাবে শরীর ছোট বড় হইতে পারে।
কিন্তু আত্মার সাইজ সবসময় সমান। आत्मा ही कहती है, हे पतित पावन आओ। आत्मा बाप को पुकारती है। बाप कहते हैं, मैं कलप कलप आता हूं तुम पतितों को पावन बनाने। अभी तुम जानते हो आत्मा कैसे आती और जाती है। मनुष्य बहुत माथा मारते हैं, देखे आत्मा कैसे निकलती है, परंतु कोई को पता नहीं पड़ता, क्योंकि यह है ही अति सूक्ष्म। छोटी से आत्मा में कितना पाठ है। जैसे बीज में सारा ज्ञान है, वह तो बीज जड़ है। बट का झाड़ होता है ना, बनन टी, उसका बीज कितना छोटा है, उससे झाड़ कितना बड़ा लंबा निकला। कलकत्ता वाला बट का झाड़ कईयों ने देखा होगा। कलकाताते आछे ना একটা বট বৃক্ষ, কত বিশাল এরিয়াতে গাছটা হয়ে গেছে, কিন্তু বুঝাই যায় না মেন গুড়াটা কোথায়। কিন্তু একটা ছোট বীজ থেকেই তো গাছটা হয়েছে না। बहुत बड़ा झाड़ है। अब उसका फाउंडेशन सारा सड़ गया है। मूल যেটা গুড়া ছিল ওটা পচে গেছে, बाकी झाड़ खड़ा है। यह भी ऐसे है। देवता धर्म का फाउंडेशन नहीं है। फाउंडेशन ছিল देवी देवता धर्मेर से नहीं। झाड़ की तो अब जर्जरी भूत अवस्था है। ये सृष्टि रूपी झाड़ तार जर्जरित अवस्था हो गए। यह भी तुम जानते हो। तब तो गवर्नमेंट को भी कहते हो कि हम इतना समय में दुनिया को पावन बनाकर दिखाएंगे। मनुष्य इन बातों को समझते नहीं। तुमको तो निश्चय है कि हम इस भारत को श्रेष्ठाचारी जरूर बनाएंगे। तब तो भ्रष्टाचारी मनुष्यों का विनाश होगा। যখন শ্রেষ্ঠচারী দুনিয়া হবে তারপরে ভ্রষ্টাচারী समाप्ति होवे। यह जो चाहते हैं शांति हो जाए, आत्मा पाठ बजाते बजाते थक गई है, क्लांत हो गए। कत पाठ बजाबे यार, इसीलिए पुकारती है। তখন ক্লান্ত হয়ে গেছে, তখন বাবাকে ডাকা শুরু করছে, हे शांति देवा। यह थोड़े ही समझते आत्मा शांत स्वरूप है। आत्मा निजेर धर्म हইল शांति, परंतु यहाँ आत्मा को इंद्रियों द्वारा कर्म तो जरूर करना है। शांति दो कहते हैं, यह कोई को पता नहीं कि शांति धाम अलग है, सुख धाम अलग है। सुख धाम में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। सुख धाम छिलो मनुष्य अल्प छिलो, अनेक मनुष्य হয়ে গেলে সব কিছুতে ভাগ বটরা হয়ে যায়। একটা জায়গাতে দুজন লোক থাকার জায়গা আছে, সেখানে চারজন লোক হয়ে যাবে, তো অটোমেটিকলি অশান্তি হবে। এই দুনিয়াটা সতীযুগে সেই দুনিয়া ছিল, সবার বিশাল বিশাল সব কিছু ছিল। আর আজকে ওই দুনিয়ার মধ্যে এত মানুষের সংখ্যা বাড়ে গেছে যে এই দুনিয়া কি হয়ে গেছে, একদম রৌরব নরক হয়ে গেছে। এক জায়গাতে বেশি লোক হয়ে গেলে বাতাবরণ কেমন হয়ে যায়, বাতাবরণটা একদম উশৃঙ্খল বাতাবরণ হয়ে যায়। ঠিক এই দুনিয়াটা তো সতীযুগে যেটা ছিল কলিযুগেও এটাই আছে, কিন্তু মানুষ এত হয়ে গেছে যে তার থাকার জন্য কত কিছু ব্যবস্থা। একটা বাড়িতে নর্মালি দেখবেন 5 জন মেম্বার আছে, সবার থাকার জন্য সেটিং করা আছে ব্যবস্থা। আর 5 জন ব্যক্তি আপনার বাড়িতে আসে গেল, সেই দিনে দেখবেন মাটিতেও বিছানা পাতে দেওয়া হয়, তাই না। ডাইনিং টেবিলে 4 জনের বসার জায়গা আছে, মাটিতে বসে খাইলো, মাটিতেই ঘুমাইলো, রান্না বাড়িও মানে সব কিছুর মধ্যে একটা কোলাহল শুরু হয়ে যায়। তো এই দুনিয়াটাও ঠিক এইভাবেই হয়ে গেল।
জনসংখ্যা কম ছিল, সুখী ছিল মানুষ। জনসংখ্যা বাড়ে গেল, দুঃখীরা শান্তি হয়ে গেল। তো শান্তির জন্য মানুষ কত কিছু করা শুরু করে দিল। वह है ही पवित्र दुनिया, वहाँ शांति की कोई मांग नहीं। कर्म तो वहाँ भी करते हैं, परंतु वहाँ अशांति नहीं होती। सती जुगे कोनो शांति होबे ना। जीवन मुक्त अर्थात शांति धाम दोनों अलग है। जीवन मुक्ति हইল सती जुग, और मुक्ति हইल जीवने থাকবো কিন্তু মুক্ত অবস্থায় থাকবো, আর शांति धाम तो हইल मुक्ति धाम। सतयुग में जीव आत्माओं को सुख भी है तो शांति भी है। हेल्दी एवर हेल्दी वेल्दी रहते हैं। सतयुगे एवर हेल्दियो থাকবে, वेल्दियो থাকবে মানুষ। अभी तुम जानते हो स्वर्ग किसको कहते हैं। दुनिया में यह भी कोई को पता नहीं कि स्वर्ग क्या है। यह लक्ष्मी नारायण बच्चे हैं ना, इन बच्चों का भी सुख किसने दिया। लक्ष्मी नारायण तो कारो बच्चा, कोई को सुख देने वाला है क्या। इन्हों को फिर राज्य आने वाला है। लक्ष्मी नारायण ने राज्य आसार आगे आसबे माने आसार आने वाला है, माना आसबे की। स्वर्ग जरूर फिर रिपीट होगा, स्वर्ग आसबे। स्वर्ग में जब होंगे तो वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि नरक फिर से रिपीट करेंगे। स्वर्गे যখন আমরা থাকবো তখন এই কথা মনে থাকবে না, কেন কি রিপিট কথাটা মনে পড়লে ওখানে দুঃখ হবে। अभी कहते हैं पवित्रता सुख शांति की नई दुनिया फिर से रिपीट होगी। কেন আমরা দুঃখে দুনিয়াতে আছি, আর আশা দুনিয়াটা আসবে সুখধাম। यह तो पुरानी दुनिया दुख धाम है। इसको आयरन एज वर्ल्ड कहते हैं। आयरन वर्ल्ड, आयरन एज दुनिया, गोल्डन एजे जाइते चाहते हमरा। नई दुनिया भी तो थी ना, उसको स्वर्ग कहते हैं। यह ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में ठहरा हुआ है। बरोबर हम फिर से देवी देवता बन रहे हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है, हम फिर से स्वर्ग की बादशाही लेते हैं। हेबिन के बाप से वर्षा जरूर पाएंगे। यह अच्छी रीति याद करना है। हम आत्माएं वहाँ रहती है, फिर हम यहाँ आए हैं पाठ बजाने। वहाँ छिला मानो एखाने छिलाम, एखाने आसছি पाठ बजाइते। अब स्मृति मिली है 84 जन्म कैसे लेते। बाप समझाते भी हैं तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को। ब्राह्मण बने बेगर प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा बने बेगर शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे। शिव बाबा থেকে वर्षा নেওয়ার জন্য तो आगे ब्राह्मण होते लगবে। प्रजापिता ब्रह्मा तो महसूर है। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, तो पुरानी दुनिया का राज भी जरूर उन्हों को मिला होगा। 5000 वर्ष पहले भी ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना अब फिर रिपीट होगा। इसके लिए तुम तैयारी कर रहे हो। कई बच्चे पूछते हैं ड्रामा को बड़ा माने या पुरुषार्थ को बड़ा माने। समझा जाता है पुरुषार्थ तो जरूर करना होता। पुरुषार्थ बेगर तो प्रारब्ध कैसे मिलेगी। पूरा पुरुषार्थ करना है। कोई अच्छी रीति पुरुषार्थ करते तो समझा जाता है ड्रामा अनुसार इसका पुरुषार्थ अच्छा चल रहा है। ड्रामा अनुযায়ী पुरुषार्थটা ভালো করছে, পদ भी अच्छा पाएगा। ভালো पुरुषार्थ করলে পদটাও ভালো পাবে। उसका पुरुषार्थ बहुत तीव्र चल रहा है। কেউ ভালোভাবে पुरुषार्थ করে বলে ও तीव्र पुरुषार्थी। फिर चलते चलते कोई का कम पद भी हो जाता है। जा কত দূর আগাইলো তারপরে থেমে গেল। ब्राह्मणियां जानती हैं, ब्राह्मणियों के पास आने वाले भी जानते हैं फलाना बहुत अच्छा चलता था,
आजकल आते नहीं हैं। कहते हैं हमारी बुद्धि को पता नहीं क्यों नहीं बैठता। কি হয়ে গেল, বুদ্ধিতে কিছুই বসে না। बाबा को हम याद कर नहीं सकते, बस हम नहीं चल सकेंगे। माया আসে গেল, কি সংকল্প হয়ে গেল, ঢিলা, একদম নট ঢিলা হয়ে গেল। কি ভাবলো, हम नहीं चल सकेंगे, কোথায় তীব্র পুরুষার্থী আর একদম পুরুষার্থ কি হয়ে গেল, হীন। ऐसे ऐसे लिख देते हैं, मूल बात है निर्विकारी बनना। विकार को छोड़ना बड़ा मुश्किल है। तुम जानते हो ड्रामा अनुसार कल्प पहले मिसल इनकी ऐसी अवस्था चली आ रही है। আগেও এরকম হয়েছিল, এখনো হচ্ছে। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, इस बेहद के खेल को साक्षी होकर देखना है। এই খেল দেখতেছি আমরা সবাই খেল দেখতেছি। তো বাবা কি বললেন, একটা মাঠে যদি খেল চলতে থাকে তখন সব সাক্ষী দ্রষ্টা হয় দেখে। তো বাবা বললেন इस बेहद के खेल को साक्षी होकर देखना है, कोई से भी डरना नहीं है। निर्भय बनने के लिए मैं आत्मा हूँ, यह पाठ पक्का करना है। কোনো সিচুয়েশন কোনো পরিস্থিতিতে বাবা বললেন ভয় পাইতে নাই, अर्थात पक्का निश्चय करो कि मैं आत्मा हूँ। नंबर दूसरा, अपनी जांच करके स्वयं की परीक्षा लेनी है। নিজেরে নিজে চেক করতে বললেন আর নিজের দিকে নিজেই পরীক্ষা নিতে বললেন। कि कोई भी कर्म इंद्री चल्यामान तो नहीं होती है, कोनो कर्म इंद्री तो আমাকে মানে বিচলিত তো করছে না। काम विकार पर जीत पाई है, देही अभिमानी कहाँ तक बने हैं, देही अभिमानी কতটুক আমি তৈরি হয়েছি। वरदान, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति और पोजीशन की नशे द्वारा कल्प कल्प के अधिकारी भव। कम्बाइंड स्वरूप की स्मृति, आमी और बाबा दुजने कम्बाइंड अच्छी, और पोजीशन के नशे द्वारा कल्प कल्प के अधिकारी भव। निजे के बाप আমার সাথে আছে, কম্বাইন্ড আছি, আর পজিশনের নশা দ্বারা কলপ কলপকে অধিকারী আত্মা। আমি নতুন আত্মা না, কল্প পেহলেও আমি বাবা থেকে অধিকার নিয়েছিলাম আর এবারও নিচ্ছি, আমি তো অধিকারী। मैं और मेरा बाबा, स्मृति की থাকবে मैं और मेरा बाबा। इस स्मृति से कंबाइंड रहो, कंबाइंड रहो। यह श्रेष्ठ पोजीशन सदा स्मृति में रहे कि हम आज ब्राह्मण हैं, कल देवता बनेंगे। यह श्रेष्ठ पोजीशन स्मृतिते থাকতে বললেন कि हम आज ब्राह्मण हैं, आज के আমরা ब्राह्मण, काल देवता बनेंगे, काल के আমরা देवता থাকবো। हम शो हम का मंत्र सदा याद रहे तो इस नशे और खुशी में पुरानी दुनिया सहज भूल जाएगी। नशाओ থাকবে, खुशियों থাকবে, আর এই পুরনো দুনিয়া সহজে ভুলে যাওয়া যাবে। सदा यही खुमारी रहेगी कि हम ही कलप कलप की अधिकारी आत्मा हैं। हम ही थे, हम ही हैं, और हम ही कलप कलप रहेंगे। हम ही थे, আমি ছিলাম, हम ही हैं, আমি আছি, আর
हम कल्प कल्प होंगे, कल्प कल्प থাকবো, মানে তিনও কাল হয়ে গেল। আমি থে মানে আমি ছিলাম, আমি হ্যাঁ আমি আছি, আর हम ही कल्प कल्प होंगे, कल्प कल्प আমারে পাঠ আছে, মানে তিনও কালের মধ্যে আমারে পাঠ আছে মূল কথা। স্লোগান, स्वयं का स्वयं ही टीचर बनो, নিজের নিজের শিক্ষক बनो, तो सर्व कमजोरियां स्वतः समाप्त हो जाएंगे। নিজের টিচার নিজের যদি হওয়া যায় তো নিজের কমজোরি নিজেই ঠিক করে যাওয়া যায়, মানে নিজেকে পরিবর্তন করে নেওয়া যায়। আজকে 23 नंबर, फ्राक दिल के साथ इकोनॉमी का अवतार, दीदी मनमोहिनी जी। दीदी आने वाले मेहमानों की भरपूर खातिरी करती। দিদির কাছে যদি কোনো মেহমান আসতো দিদি ভালোভাবে খাতিরি করতেন। कभी कभी ऐसे भोजन रचाती जिसमें 36 बार 56 प्रकार के व्यंजन का ब्रह्मा भोजन कराती, ना 36 प्रकार के भोग, 56 प्रकार का भोग, 36 प्रकारेर भोग बनाइते कखनो 56 प्रकारेर भोग। एक बार तो दीदी ने 108 प्रकार का भोग बनवाया और सभी के साथ मिलकर खाया और खिलाया, लेकिन साथ साथ अनासक्त वृत्ति पर भी ध्यान खिंचवाया। अनासक्त माने এটা না কি 108 বার বললো, 108 বার 108টা আইটেম হইল, তো প্রতিবার এরকমই হোক বা খুব ভালো লাগলো, ওর প্রতি একদম আকর্ষণ হয়ে গেল, এটা আইটেমটা হইতেই লাগে, ওটা তো অনাসক্তি ভাব, কোনো আসক্তি না যেন। हाँ सब खाइलो, लेकिन अनासक्त वृत्ति पर ध्यान भी खिंचवाया। दीदी यज्ञ की इकोनॉमी का बहुत ध्यान रखती। इकोनॉमी ऊपर दीदी बहुत ध्यान থাকতো। दीदी कहती गरीब गरीब बच्चे, भोली भोली माताएं अपनी मेहनत की कमाई यज्ञ में भेजती हैं, इसीलिए कोई भी व्यर्थ खर्चा नहीं करना। अपने प्रति कम से कम खर्चा हो, निजेर प्रति যত পারা যাক তত কম খরচা, इस बात पर ध्यान रखना। साधन सुविधा सब सेवा के लिए है, যত সাধন আর সুবিধা আছে ওই সাধন সুবিধা দ্বারা সেবা করার জন্য। अपने प्रति नहीं, আমার জন্য না, সেবার জন্য আছে। এই জিনিসটা আছে, হ্যাঁ হইতে লাগবে, এটার দ্বারা সেবা হবে, কিন্তু নিজের জন্য কোনো সাধন সুবিধা যেনি না থাকে। এটাকেই দিদি কি বললেন, ফ্রাক দিল। ফ্রাক দিল মানে বড় দিল। আর ইকোনমি বহুত হিসাবই চলা, হিসাবে চলে, বলে না ইকোনমির স্বভাব আছে, এক নামি আর ইকোনমি। তো দিদির স্বভাব কি ছিল, ইকোনমির স্বভাব, মানে কম খরচার মধ্যে ঠিকঠাক করার স্বভাব ছিল। ফ্রাক দিল মানে বড়া দিল, খোলা দিল, উদার দিল ছিল। ओम शांति।